Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is transistor. Transistor actually composition of two words, transfer and resistance. Transfer plus resistor, which means that the transfer of low resistance circuit emitter base circuit to high resistance circuit collector base. So this is known as transistor. It is of two types, NPN transistor Here P-type is sandwiched between two N-type semiconductors. Its symbol is N, P, N transistor. And second type is PNP transistor. Here N-type semiconductor is sandwiched between two P-type semiconductors. First region is called emitter and the middle region is known as base, and third portion is known as collector. Emitter impurity or concentration of emitter is greater than concentration or impurity in collector, which is also greater than impurity or concentration in the base region. सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं साइज के हवाले से. द साइज ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन size of emitter and size of emitter is greater than size of base. तमाम प्रॉपर्टीज़ को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने से सम अप कर दिया. ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो यहाँ पर एमिटर के हवाले से हम कह सकते हैं कि impurity or concentration of the charge carrier in the emitter is greater than collector and base. Size of emitter is slightly less than collector and greater than base, and it is a region where charge carrier emit from the emitter to base and then to collector. Dear students, यहाँ पे हम दो बेसिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के लिए. पहली इक्वेशन हमारे पास है एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. के इनपुट करंट दो पर्पस में दो पाथ में डिवाइड हो जाता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट में. बेस करंट और कलेक्टर करंट को सम अप कर लिया जाए तो ये इनका इनपुट करंट के इक्वल होगा. और दूसरी जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जिसको हम करंट गेन का नाम देते हैं, बीटा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इज नोन एज करंट गेन. यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दो करंट की रेशियो है, सेम क्वांटिटी की रेशियो है, इस वजह से इसका यूनिट नहीं होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास 30 to 500 ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा. ये इसकी वैल्यू होगी. Students, as you know that amplifier mean amplify, increase करना, बढ़ा देना, amplitude को increase करना. The electronic device which increase the amplitude of the input signals.
that is known as amplifier. First of all, we see about the circuit diagram. Output voltage VCE, resistor RC, voltage VCC, here is emitter, base, collector, here is input voltage delta V in, and VBB, here is RB. The resistor across base emitter is RIE. This voltage is also known as VBE. The voltage between base and emitter, VBE. Now we know that the current gain beta is equal to the ratio between collector current and base current is known as current gain, and collector current from this relation is equal to beta into IB. यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर हो रही है कि बीटा IB इनपुट करंट है जिसका बीटा का प्रोडक्ट है, और बीटा की वैल्यू 30 to 500 है, कांस्टेंट नंबर है. जब आप किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है आउटपुट जो आंसर मिलेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आउटपुट कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा, एम्पलीफाई होगा. यहाँ पे हम एक इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, VBE is equal to IB into RIE. IB is equal to VBE over RIE. इसी वैल्यू को हम IC में पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है IC इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई IB की वैल्यू जो हम ओम्स लॉ से निकाल चुके हैं, VBE ओवर RIE. ये हमारे पास आउटपुट करंट आ जाएगा. अब हम जो आउटपुट लूप है, यहाँ पर जो सोर्स है हमारे पास VCC है, और यहाँ पर पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो VC है, और यहाँ पर कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VCE है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल्स, VCC इज इक्वल टू VC प्लस VCE. इसको लिखा जा सकता है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VC. VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VC. VCC माइनस VC को राइट साइड पे लिख दिया और VCE को लेफ्ट साइड पे लिख दिया. तो इसको लिखा जा सकता है V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC. और IC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC. और IC की वैल्यू हमारे पास है बीटा
VBE ओवर RIE, बीटा VBE और RIE, ये हमारे पास IC की वैल्यू आ गई, इनटू RC। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। VBE बेस एमिटर के क्रॉस वोल्टेज है और इसे एक्सटर्नल सोर्स से डेल्टा V इन इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास VBE कन्वर्ट हो जाएगा VBE प्लस डेल्टा V इन। जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ बाय डेल्टा V इन, तो जाहिर है कि हमारे पास जो करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। IB चेंज होके IB प्लस डेल्टा I इन, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरीके से V आउट भी इंक्रीज़ होगा, V आउट प्लस डेल्टा V आउट। और जब वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो आउटपुट करंट भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा। IC इज इक्वल टू IC प्लस डेल्टा IC। ये इसमें हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। जब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें कुछ एडिशन हो रही है, तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, आउटपुट करंट भी इंक्रीज़ होगा। अब यही पैरामीटर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा V आउट प्लस डेल्टा V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE, जिसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी VBE प्लस डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा V आउट प्लस डेल्टा V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, तो सिचुएशन ये बनेगी V आउट प्लस डेल्टा V आउट माइनस V आउट प्लस डेल्टा V आउट माइनस V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC बीटा डेल्टा V इन और RIE इंटू RC माइनस VCC प्लस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V आउट प्लस में V आउट माइनस में आपस में कैंसिल होगा, और VCC प्लस में VCC माइनस में आपस में कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC ये माइनस में और ये वैल्यू प्लस में आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी डेल्टा V आउट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू बीटा का प्रोडक्ट है, V इन मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा के साथ, तो आउटपुट मिल रहा है। ज़ाहिर है जब किसी चीज़ का प्रोडक्ट होगा हमारे पास आंसर लार्ज हो जाएगा। तो यहीं से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउट ऑफ फेज़ है, विद द फेज़ डिफरेंस ऑफ 180 है। अब इसको भी फर्दर हम वोल्टेज गेन में लिख सकते हैं, डेल्टा V आउट ओवर डेल्टा V इन
इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई, और इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है। डियर स्टूडेंट्स, एक हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो आउटपुट सिग्नल हमारे पास मिल रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म में हैं कि अगर ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है तो इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में है। एक तो इसमें एम्पलीट्यूड स्मॉल है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी बात ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ मिल रहा है, यानी इनपुट के लिहाज से आउटपुट जो हमारे पास मिल रही है वो आउट ऑफ फेज़ है और साथ एम्पलीफाइड है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, क्रस्ट ट्रफ में बदल गया और ट्रफ क्रस्ट में बदल गया, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस वजह से ये सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट है जो हमें जो आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है वो आउट ऑफ फेज़ है और साथ ही एम्पलीफाइड है। इस वजह से हम कहते हैं ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।